Hello everyone. So, as you all know, we are now starting with the most important chapters of the entire syllabus, which is derivative analysis and valuation. Now, you might have at least heard somewhere or the other डेरिवेटिव्स सुना होगा, वर्ड सुना होगा, या फिर किसी फ्रेंड के मुंह से सुना होगा, या फिर ऑफिस के सीनियर से सुना होगा कि डेरिवेटिव्स टफ है, या फिर आप अगर मैथ स्टूडेंट हो इन 11th एंड 12th देन यू माइट हैव हर्ड एंड माइट हैव सॉल्व दिस चैप्टर ऑफ डेरिवेटिव्स इन मैथ सिलेबस. ठीक है, तो तभी डी बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी वाई, डी वाई बाई डी एक्स करके कुछ तो फॉर्मूला से तुम लोग सॉल्व करके वो चैप्टर सॉल्व कर देते थे. ठीक है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम you learned mathematically how to use derivatives, जिसका ज़्यादा डीपर नॉलेज शायद हमारे लिए रेलेवेंट भी नहीं है. ठीक है, बट what we are going to learn now onwards, ठीक है, is very important practically as well as academically. ठीक है, अभी जो करेंगे वो प्रैक्टिकली इतना रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट इसीलिए है बिकॉज if you want to enter into finance sector, or if you want to work, or if you want to pursue your career in finance, then this particular chapter is very important for you to understand. If you want to pursue CFA, if you want to pursue MBA in finance, if you want to pursue FRM, be it anything, ठीक है, to understand the crux of this chapter, to understand the basics, the logic, the concepts is very very crucial. डोंट ओवरलुक एनी ऑफ द टॉपिक्स एक्सेप्ट अ फ्यू जो मैं बोलूँगा कि हमारे लिए काम का नहीं है इतना, एंड एट द सेम टाइम जो फॉर्मूला से या मैकेनिकली सॉल्व कर सकते हैं. बट अगर हम 95% ऑफ सिलेबस की बात करें देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. ठीक है, इसको मगअप नहीं करना है, इसके सम सॉल्विंग, इसका सम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके सारे सम्स मैंने सॉल्व कर लिए तो मुझे एग्जाम्स में सम आ जाएगा सॉल्व करने. ऑल दैट विल ओनली हेल्प यू एस द एग्जाम्स बट नॉट एस योर नॉलेज. ठीक है, सो प्लीज इफ यू गेट स्टक, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी पार्ट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर स्टेप, ठीक है, यू नो व्हाट टू डू. ठीक है, डोंट जस्ट स्किप बिकॉज एनी कंसेप्ट कैन बी यूज्ड लेटर. ठीक है, सो इफ यू विल अंडरस्टैंड एट द इनिशियल स्टेज ओनली देन यू विल बी एबल टू डेवलप द concept further which is required. And at the same time, looking at the recent trend of the exams, this particular chapter has been tested very nicely and conceptually, as well as a lot of analytical skills were supposed to be used and not just what questions were used to you know being asked earlier, वही के वही वापस रिपीट पूछना बंद कर दिए. ठीक है, सो if you are really looking forward to this chapter and you need to be receptive, you need to link all the concepts. easy है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि difficulty है एंड मैं डरा नहीं रहा हूँ. and generally I don't give some long introductions before all the various other chapters, but इसके लिए स्पेसिफिकली मैं इतना एम्फोसाइज करने का कोशिश कर रहा हूँ. द ओनली रीज़न बीइंग टू थिंग्स. फर्स्ट, students are influenced, or you know, this is a concept of bandwagon effect, or some superior or senior you know gives you this opinion that ये चैप्टर ऑप्शन में छोड़ दे, इतना टाइम डाल के मतलब नहीं है, एग्जाम में तो तुझे सॉल्व करने होएगा नहीं, या फिर ब्लैंक हो जाएगा, या डिफिकल्ट है, या फिर सीनियर ने बोल दिया कि इसके आंसर्स मगअप करके जाना. सो आई डोंट वांट दिस टू हैपन. एंड सेकंड, इफ यू रियली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट देन यू कैन क्रैक एनी क्वेश्चन. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आप इजीली क्रैक कर सकते हो, एंड ईजी और इंटरेस्टिंग भी है बिकॉज द कंसेप्ट्स आर न्यू. यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनी ऑफ द कंसेप्ट्स ऑलरेडी unless you are an active stock market trader or something like that. So concepts will be new, and since since you are starting it from the scratch, it will be very easy for you to grasp, provided you watch all the lectures consistently, practice all the questions consistently, and revise the same from time to time basis. Okay, so having said that, I really would like to highlight the importance of this chapter, not just academically but also practically. It will really help you throughout
each and every step of your career, be it investing, ठीक है, पैसा कमाओगे, even if you are in audit or taxation for your life, you will be earning money and you will be investing somewhere. And if you are investing somewhere, then the derivatives part will really help you to manage your investments. ठीक है, so start करते हैं. सबसे पहले what is the word derivative? ठीक है, just pause the lecture and ask yourself a few questions. What do you really know about derivative, or what can you think of derivative? ठीक है, मतलब जब भी डेरिवेटिव बोला, वर्ड यूज किया, तो व्हाट इज द इमेज दैट कम्स अप टू योर माइंड. ठीक है, क्या विजुअलाइज कर सकते हो? हाउ कैन यू पोर्ट्रे द मीनिंग ऑफ द टर्म डेरिवेटिव? या अगर आपको ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एग्जांपल देने बोला, देन हाउ विल यू एक्सप्लेन डेरिवेटिव? ठीक है, पॉज एंड गिव योर सेल्फ द आंसर टू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज डेरिवेटिव. थिंक ऑफ every possible explanation that you can provide for. ठीक है, आई अज्यूम कि अभी आपने डेरिवेटिव के बारे में सोच लिया है. ठीक है, नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज डेरिवेटिव. सो डेरिवेटिव, द वर्ड इज नथिंग बट डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टू डिराइव, मतलब डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टू डिराइव, मतलब डेरिवेटिव इज नथिंग बट समथिंग डिराइव्स फ्रॉम समथिंग. मतलब just like the auditor draws conclusion from the audit evidences obtained. ठीक है, ऑडिट नहीं पढ़ा रहा हूँ. ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर फॉर्म्स एन ओपिनियन बेस्ड ऑन कंक्लूजन्स, ठीक है, विच ही हैज obtained यूजिंग द ऑडिट एविडेंसेस. सिमिलर, ये क्या हो गया? डेरिवेटिव हो गया. ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स प्राइमा फेसी, और प्राइमरी डेरिवेटिव इज फॉर्मिंग अ कंक्लूजन. ठीक है, फॉर्मिंग अ कंक्लूजन फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द ऑडिट एविडेंसेस obtained. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ डेरिवेटिव. यू हैव डिराइव्ड अ कंक्लूजन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंसेस obtained. ठीक है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स प्राइमरी डेरिवेटिव. नाउ based on these conclusions you are forming an opinion. It can be qualified, unqualified, adverse opinion, disclaimer of opinion, whatever the case may be. But this opinion has been formed from another derivative which is our conclusion. So if you see, ठीक है, first अपना क्या है? First is audit evidence. Audit evidence से we drew some conclusions. Conclusions से क्या मिला? Opinion. ठीक है, so this is a crude example of what is a derivative. Means something derives from the value of something. Now to use it in financial terms, to express it in financial terms, how can we express or explain derivative? Derivative is a financial instrument. ठीक है, एक कोई तो इंस्ट्रूमेंट है जिसका वैल्यू मतलब जिसकी कीमत डिराइव्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सम एसेट. ठीक है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग है, एग्जांपल दे रहा हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग है, इसके वैल्यू से वो इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू डिटरमाइन होएगा. दैट मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट्स, if the value of land and building appreciates, the value of that instrument will also appreciate. On the other hand, if the value of the land and building depreciates, the value of that instrument will also depreciate. Similarly, audit के terms में अगर हम बात करें, audit evidence अगर strong है, if they are all clear, ठीक है, then our conclusions will also be very clear and very strong, and on the basis of that the auditor will also frame which kind of opinion? Unqualified opinion. ठीक है, कौन से kind of which type of opinion? Unqualified opinion. So unqualified opinion का स्टैंड अलोन वैल्यू है क्या कुछ? मतलब अगर मैं ऑडिट एविडेंस और कंक्लूजन हटा दूं, सो डज दिस ओपिनियन हैव एनी स्टैंड अलोन वैल्यू और सिग्निफिकेंस? देयर इज नो स्टैंड अलोन वैल्यू और सिग्निफिकेंस. मैं अगर आपको बोलता हूँ, मैंने आपको अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया, अरे भाई कौन सा कंपनी है, कौन से ईयर के एंडिंग की बात कर रहे हो, क्या आपने ऑडिट एविडेंस देखा, क्या आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया? नहीं. सो विदाउट दैट there is no sole existence of this derivative, because its existence depends only on the existence of the main
मेन आइटम क्या था अपना, ऑडिट एविडेंस, ठीक है। सो अगर ऑडिट एविडेंस नहीं है तो कंक्लूजन्स नहीं है, कंक्लूजन्स नहीं है तो ओपिनियन नहीं है, ठीक है। ओपिनियन का खुद में कुछ वजूद नहीं है, देयर इज नो इंडिविजुअलिटी ऑफ द ओपिनियन और द कंक्लूजन। अगर कंक्लूजन की बात करें, एविडेंस होना जरूरी है, ठीक है। सो अगेन कमिंग बैक टू फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज, डेरिवेटिव्स are nothing but financial instruments whose value in turn depends on the value of some asset, ठीक है, जिसका वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ सम एसेट, ठीक है। अभी तक हम लोग ने एक सिंपल पॉइंट डिस्कस किया है, डेरिवेटिव मींस अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसका वैल्यू इज डिपेंडेंट और इज डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सम एसेट, ठीक है। हम लोग क्लियर और क्रिस्प डेफिनेशन पे नहीं जा रहे, अभी सिर्फ डेरिवेटिव का बात कर रहे हैं फ्रॉम फाइनेंशियल एंगल, ठीक है। ये हो गया। नाउ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की भी बात कर दी कि वो इंस्ट्रूमेंट का कुछ वैल्यू नहीं है। नाउ हाउ डेरिवेटिव्स हेल्प और प्ले रोल इन अवर व्हाट वी से दिस फाइनेंशियल वर्ल्ड या फिर इन दिस स्टॉक मार्केट्स, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ डेरिवेटिव्स? एग्जिस्टेंस मतलब इनका क्रिएशन कैसे हुआ, ठीक है। हाउ डिड द डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शन अराइज एंड हाउ दे आर वाइडली यूज्ड एंड हाउ दे आर वाइडली पॉपुलर, ठीक है। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन द वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट्स, बट कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा जिससे आपको आप शायद थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे कि डेरिवेटिव्स क्यों पिक्चर में आए, ठीक है। बट बिफोर दैट वन स्मॉल थिंग कि हमने अभी बोला कि द वैल्यू ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट derives value on the basis of some underlying asset. Now what is that underlying asset? ठीक है, that underlying asset can be shares, can be any other security, can be some tangible commodity like rice, wheat, silver, gold, ठीक है। कोई commodity हो सकता है, कोई intangible item भी हो सकता है, for example interest rate हो सकता है, then there can be cash flows, ठीक है। अभी these are assets, ठीक है। assets can be tangible, they can be intangible, ठीक है। so on the basis of those value the value of this financial instrument is derived, ठीक है। so ये हमारा एक definition वाला part खत्म हो गया। now let's understand the rationale or the need for the derivatives to arise in the markets। कहाँ से आए पिक्चर में derivatives? so let me give you one very easy example जिससे आप अच्छे से relate कर पाओ कि derivatives का क्या काम है, how they help some what the traders or the speculators, जो भी parties है in the stock market, ठीक है। now one classic example is that of a farmer, ठीक है। एक फार्मर का किस्सा लेते हैं। now ये फार्मर है जो एक क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। he produces a crop, say wheat for example, ठीक है। wheat प्रोड्यूस करता है and on his estimate or on his past 20 years of experience he says he produces 1000 quintals of rice every year। जो भी हार्वेस्टिंग सीजन होते हैं तभी 1000 क्विंटल्स ऑफ राइस प्रोड्यूस होते हैं। नाउ देयर इज अ ब्रेड कंपनी, ठीक है, एक ब्रेड मेकर है, फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया ब्रेड प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड उसके लिए दिस व्हीट इज अ रॉ मटेरियल टू बी प्रोक्योर्ड फॉर द प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेड, ठीक है। नाउ व्हीट जो है उसके प्राइसेस में बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत फ्लक्चुएशंस है, बहुत वोलेटिलिटी है एंड ऑन द अदर हैंड फार्मर इज हियर, ही हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹15 lakhs फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नाबार्ड, ठीक है। उसने 15 लाख का लोन ले रखा है एंड उसको 15 लाख का लोन रीपे करना है। नाउ owing to price fluctuations and uncertainties in the market, he is expecting that the value of wheat will decline. He is expecting what? The value of wheat will decline in the near future, say after 2-3 months when the crop will actually harvest. So जब भी हार्वेस्टिंग सीजन आएगा तभी वो क्रॉप का वैल्यू वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि चलो फिगर्स के टर्म्स में बात करते हैं कि अभी करेंटली द प्राइस ऑफ व्हीट इज ₹50 per kg एंड
आफ्टर 3 मंथ्स जब भी हार्वेस्टिंग सीजन आएगा, जब भी वो 1000 क्विंटल्स ऑफ राइस प्रोड्यूस होंगे, तभी इट विल बी 40 रुपीज पर केजी, ठीक है. एंड ही इज वरीड अबाउट दिस प्राइस डिफरेंस. ही इज वरीड अबाउट दिस प्राइस डिफरेंस. व्हाई ही इज वरीड अबाउट दिस प्राइस डिफरेंस? बिकॉज 1000 क्विंटल्स ऑफ राइस विल बी देन सोल्ड एट अ लेसर प्राइस देन व्हाट द प्राइस प्रिवेल्स टुडे. And on the other end there is this company called Britannia which uses wheat to produce bread. Britannia is of the opinion that the prices of wheat will rise. When the crops will harvest, the prices of wheat will rise. Currently they are trading at rupees 50 per kg, and we are expecting the price of the wheat to go to rupees 60 per kg. Now what happens in this derivative market? ये तो मैं over the counter ऐसे I am giving this example just to explain the crux, core reason क्या है derivatives का, ठीक है. Now farmer wants to protect the price, and at the same time even Britannia wants to protect its purchase price, ठीक है. फार्मर को प्रोटेक्ट करना है सेलिंग प्राइस, एंड ब्रिटानिया को प्रोटेक्ट करना है परचेस प्राइस. उसको ये नहीं चाहिए कि मेरा रॉ मटेरियल का इनपुट कॉस्ट बढ़ जाए, बिकॉज he cannot alter the price. He does not have so much price flexibility, because the competitors will not increase the price and Britannia will end up increasing the price, which will affect the demand of the breads made by Britannia. So Britannia is of opinion that if we can procure, or if we can fix the price, today itself at a lesser price than what we are expecting 3 months down the line, then our input cost will be in control, ठीक है. फार्मर को क्या प्रोटेक्ट करना है? सेलिंग प्राइस. ब्रिटानिया को क्या प्रोटेक्ट करना है? परचेस प्राइस. बोथ विल कम टुगेदर. फार्मर क्या बोलेगा? फार्मर बोलेगा कि मैं आज से 3 महीने बाद, 3 months after 3 months down the line, I will be ready to sell you 1000 quintals of rice at a price of rupees 48 per kg. Now remember, फार्मर का 50 रुपया करंट प्रीवेलिंग प्राइस था, एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग 40 रुपीज 3 months डाउन द लाइन. सो व्हाट ही इज डूइंग टेक्निकली, ही इज बुकिंग द प्राइस, ही इज बुकिंग हिज सेलिंग प्राइस. एंड ब्रिटानिया को क्या बेनिफिट हो गया? ब्रिटानिया को तो करंट मार्केट प्राइस से भी सस्ते में मिल गया, 50 से उसको कम 48 रुपीज में. ही इज रेडी टू पे, ही विल बी वेरी हैप्पीली रेडी टू पे 48 रुपीज फॉर एवरी केजी. एंड इससे दोनों का विन विन सिचुएशन आप बोल सकते हो कि बोथ सेटल देयर पोजीशन, बिकॉज दोनों पार्टीज ट्रांजेक्शन तो ही एंटर करेंगे इफ दे विन, ठीक है. सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन वेर इन फार्मर इज प्रोटेक्टिंग द डाउनसाइड, ऑफ व्हीट, एंड द बायर दैट इज ब्रिटानिया इज प्रोटेक्टिंग द अपसाइड ऑफ द व्हीट, बिकॉज उसका तो वो कॉस्ट है एंड फार्मर का तो सेलिंग प्राइस है, ठीक है. सो दिस इज द रैशनल ऑफ डेरिवेटिव्स. नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, ठीक है. ये जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, दिस फाइनेंशियल अरेंजमेंट दैट हैज बीन एंटर्ड बिटवीन द फार्मर एंड ब्रिटानिया लिमिटेड, ठीक है. दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस और डिराइव्ड दिस वैल्यू ऑफ रुपीज 48 पर केजी on the basis of what? On the basis of an underlying asset which is wheat. I told you it can be a commodity as well, ठीक है, कुछ भी हो सकता है. Now by entering into this transaction, the selling price, farmer is now least concerned about the market prices prevailing in the market, market prices prevailing, ठीक है. So वो मार्केट में 40 रुपीज हो जाए, 30 रुपीज पर केजी हो जाए, उसको पता है कि 3 महीने बाद ब्रिटानिया से मुझे 48 रुपीज पर केजी मिलेगा, एंड आई विल बी डिलीवरिंग 1000 quintals of rice. On the other end, Britannia is also least concerned about the market prices. Why? Because उसने already 1000 quintals खरीदने का वादा कर लिया, प्रॉमिस कर लिया है, and after 3 months he is going to pay rupees 48 per kg for 1000 quintals of rice. ठीक है. That having said, both fulfill their purpose, दोनों का पर्पस फुलफिल हो गया. एंड फिर आगे जाके प्राइस कुछ भी हो, ठीक है, अगर प्राइस नीचे गिर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 30 रुपीज हो गया, then who is the winner, final winner over here, or you can say true winner is the farmer, because farmer ने तो 48 में बेच के चुप बैठ गया, ठीक है. एंड ब्रिटानिया का एक्सपेक्टेशन जो 60 रुपीज था वो गलत हो गया, एंड उसको अभी जख मार के, ठीक है, यू कैन से अनफॉर्चुनेटली ही विल एंड अप बाइंग एट
48 rupees per kg. So he cannot help it over here. So he is at a loss, you will say. Okay, he is at a loss, but he protected himself from the upside risk, and this is the price that you pay for protecting yourself from upside risk. ठीक है, अगर उसका 60 हो जाता तो क्या, तो वो 12 रुपये बचा लेता ना 48 रुपीज पर केजी में परचेस करके. एंड इन एनी केस ही इज रिमेनिंग प्रॉफिटेबल बाय बाइंग एट 48 रुपीज पर केजी, क्योंकि वो 50 रुपये पर किलो में भी खरीद के वो प्रॉफिट्स कमा रहा था. ठीक है, बट 60-65 हो जाता तो शायद वो प्रॉफिट ना कमा पाता. ठीक है, सो इवन इफ प्राइस 30 रुपीज हो गया एंड उसने 48 रुपीज पे परचेस कर लिया, ही स्टिल विल रिमेन प्रॉफिटेबल. दो अगर वो कुछ नहीं करता, अनएक्सपोज्ड रखता, तो he would have saved a lot of money, but it would be at a risk, and this cannot be called as a calculated risk. ठीक है, because this is mere forecasting. ठीक है, so जैसे ब्रिटानिया को लॉस हुआ वैसे ही फार्मर को भी लॉस हो सकता है अगर वो एक्सपोजर ऐसे ही छोड़ देता है, वल्नरेबल छोड़ देता है. तो अगर उसने ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया, इफ ही हैड नॉट एंटर दिस कॉन्ट्रैक्ट, देन अगर प्राइस सच में 40 रुपीज हो जाता तो उसका तो नाबार्ड को लोन भी रिपे नहीं कर पाता. ठीक है, सो this financial contract or this arrangement entered between these two parties is called a derivative contract. अभी ये कौन सा derivative contract है वो हम बाद में बात करेंगे, but this is what is a derivative contract. Let me give you one more example for understanding. अच्छा, for those who are into stock markets or नहीं भी हो into stock markets, तो भी I hope you might have heard something called as Sensex or Nifty. ठीक है, now what is Sensex or Nifty? You will say it is an indexer. ठीक है, an index which represents, Sensex is S&P Sensex is nothing but an index which represents 30 companies which the index has selected, एंड उसको इंक्लूड करने से वो वॉल्यूम मतलब वैल्यूज अटैच करेंगे, वेट्स अटैच करेंगे, एंड उसके प्राइसेस के हिसाब से इंडेक्स का वैल्यू डिटरमिन होते हैं. नाउ दैट इज नथिंग बट अ डेरिवेटिव इफ यू से. ठीक है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ सेंसेक्स डिराइव्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द शेयर्स कंटेन्ड इन दैट इंडेक्स. ठीक है, विदाउट द शेयर्स, ठीक है, विदाउट दोज शेयर्स डज सेंसेक्स हैव एनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? अगर वो सब शेयर्स निकाल दो, अगर वो सब कंपनीज 30 के 30 कंपनीज डिफंक्ट हो गए तो सेंसेक्स का कुछ वजूद है, एग्जिस्टेंस है, नहीं है. ठीक है, सो एनीथिंग विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी अदर थिंग इज अ डेरिवेटिव. ठीक है, आई होप द कंसेप्ट इज क्वाइट क्लियर. ठीक है, ये समझना बहुत ही जरूरी था. एक काम करते, थोड़ा सा लिख लेते एंड उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स लिखते, विच आई विल एक्सप्लेन each and every point after writing on the board. ठीक है, once we are done with characteristics, we can then start with who are the participants, what kind of trades they enter in derivatives market, and what are the various derivative instruments. ठीक है, वही तो main है. I think this particular chapter can be further subdivided into 4 sub chapters. ठीक है, each of the 4 chapters being the each of financial instrument or the derivative that we are going to study. So we are going to study 4 types of derivatives in this particular syllabus. ठीक है, and this is quite interesting, जिसमें से first 2, ठीक है, पहले 2 बहुत ही important है एंड उस पर ही ज़्यादा एग्जाम्स में टेस्टिंग होते हैं, एंड बाकी के 2 उसको छोड़ना नहीं है. ठीक है, so we will now start writing. Give heading. Derivatives analysis and valuation, the name of the chapter. So write down first, we will write down meaning, फिर उसका फॉर्मल डेफिनेशन लिख देंगे. सो डेरिवेटिव refers to a financial product,
ठीक है. मैथमेटिकली इट कैन बी कॉल्ड एज अ वेरिएबल. ठीक है, डेरिवेटिव इज अ वेरिएबल. बिकॉज वी आर स्टडिंग फाइनेंस, डेरिवेटिव refers to a financial product, the value of which has been derived from another financial product, or an underlying asset, and without which it will have no independent existence. Without which it will have no independent existence. These two कौन से दो? द फाइनेंशियल एसेट, मतलब जो अंडरलाइंग एसेट है, एंड द डेरिवेटिव. ठीक है, ये दोनों आर ऑलवेज रिलेटेड. ठीक है, आर ऑलवेज रिलेटेड टू ईच अदर, आर ऑलवेज related, and they both interact and affect each other. ठीक है, both of them affect or interact with each other. Now do a small thing. इसके एसेट के ऊपर एक स्टार मार्क करो, एस्ट्रिक मार्क करो, and mention over here underlying asset. ठीक है, now what is an underlying asset? Underlying asset can be tangible as well as intangible. Okay, so make two arrows. It can be tangible as well as intangible. In case of tangible, you can write down financial instruments like equity shares, or it can be real estate, or it can be commodities like iron, gold, cotton, etc. Or underlying asset can be what? Intangible assets. Intangible assets can be interest rates, then there can be index. ठीक है, वो देखा हमने सेंसेक्स, निफ्टी, नेशनल 50, मतलब टॉप 50 कंपनीज. और दे कैन बी कैश फ्लोज. ठीक है, देर कैन बी डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन कैश फ्लोज. देर कैन बी डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन वेदर कंडीशंस एज वेल. ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है, इसका कुछ हमको ज़्यादा डिटेल में करना नहीं है, बट बेस्ड ऑन वेदर कंडीशंस. ठीक है, बहुत कुछ डेराइव होता है. ठीक है, द स्टॉक ऑफ वेरियस क्रॉप्स इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम दिस वेदर कंडीशंस, वेदर फोरकास्ट्स. ठीक है, सो दीज आर द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ अंडरलाइंग एसेट, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. ठीक है, लिस्ट इज एवर एक्सपांडिंग. ठीक है, हर एक चीज़ के ऊपर डेरिवेटिव हो सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक फनी एग्जांपल है. एक मूवी था कोई तो, जिसमें देयर वर टू ट्रेडर्स हु यूज्ड टू ट्रेड ऑन द टाई ऑफ देयर बॉस. ठीक है, कि बॉस ने कौन से कलर का टाई पहना. ठीक है, तो इट इज एसेंशियली अ बेट, बेसिकली इट इज मियर स्पेकुलेशन.
but this is nothing but a derivative because the value of this bet is based on the tie. ठीक है, मतलब वो टाई का कलर के बेसिस पे कौन जीता या कौन हारा वो डिटरमाइन होता है. सो दैट इज व्हाट इज अ डेरिवेटिव. ठीक है, इतना सिंपल है उसको समझने का. ठीक है, सो इट इज डिपेंडेंट और कंटिंजेंट अपॉन समथिंग, इट डिराइव्स इट्स वैल्यू अपॉन समथिंग, दैट इज व्हाट इज अ डेरिवेटिव. ठीक है, नाउ मेंशन अ नोट ओवर हियर. ठीक है, अंडरलाइंग एसेट. ठीक है, अंडरलाइंग एसेट कैन बी इवन, सॉरी इवन नहीं, कैन बी अनदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. मतलब डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव विच इज कॉल्ड अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हम लोग ने एग्जाम्पल किया, ऑडिट एविडेंस, फिर कंक्लूजन, फिर ओपिनियन. तो ओपिनियन जो था दैट इज नथिंग बट अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो यू कैन राइट डाउन इन ब्रैकेट अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. मतलब डेरिवेटिव के वैल्यू पे जिस डेरिवेटिव का वैल्यू डिटरमाइन होता है दैट इज कॉल्ड अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो अंडरलाइंग एसेट कैन बी अनदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल देयर इज अ स्टॉक. ठीक है, ये स्टॉक के बेसिस पे ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू डिराइव होता है विच इज कॉल्ड डेरिवेटिव 1. अभी ये डेरिवेटिव 1 के वैल्यू के बेसिस पे डेरिवेटिव 2 का वैल्यू डिटरमाइन होता है. सो दिस implies that the value of this derivative मतलब डेरिवेटिव 2 d2 derives from the value of d1. ठीक है, that is what is a second order derivative. ठीक है, now write down the formal definition of derivative. Derivative instrument is a contract between two parties, between two counterparties, you can say, that specifies conditions about date, quantities, amounts, etc., under which payments are to be made between both the parties. Okay, so now let's come back to the farmer example. ठीक है, it was a contract between two parties, farmer and Britannia, that specifies conditions. Now there will be some terms and conditions. अगर contract enter किया तो certainly there will be some terms and conditions about the date. Now which will be the date? 3 months later. So आज से लेके 3 महीने बाद. Quantity 1000 quintals of wheat. Amount, क्या amount? मतलब 48 rupees per kg. ठीक है. So all these things will be mentioned in the contract of this derivative instrument, and under which payments are to be made between both the parties. मतलब अभी सिंस यहाँ पे तो फार्मर सिर्फ वीट डिलीवर करेगा एंड पैसा लेगा, बट इन केस ऑफ अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ पेमेंट्स. ठीक है, एंड इन केस ऑफ एक्सचेंज ऑफ पेमेंट्स मैं तुझे दूँ तू मुझे दे, उससे अच्छा डायरेक्टली नेट सेटलमेंट करते हैं. ठीक है, सो दैट नेट सेटलमेंट वाला कंसेप्ट विल बी कमिंग आफ्टर सम टाइम. ठीक है, आई होप इतना समझा. सो एक काम कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस 2 एग्जाम्पल्स
डेफिनेशन हो गया तो फार्मर वाला एंड सेंसेक्स वाला, ठीक है. सो गिव एडिंग एग्जांपल्स. फर्स्ट, farmer. A farmer who has borrowed a loan from NABARD is worried about the selling price of the wheat that he will harvest 3 months later. The current price of wheat is rupees 50 per kg, and the farmer is expecting the price to drop to rupees 40 per kg. He produces, for sake of simplicity 1000 kgs लिख देते हैं. He produces 1000 kgs of wheat every year. ठीक है. Every year he produces 1000 kgs of wheat. On the other hand, the purchase manager at Britannia Limited, इसको छोटा शॉर्ट फॉर्म दे देते PM, at Britannia Limited is worried or concerned about the rising prices of wheat this harvest season. This harvesting season. The PM expects the price to soar, SOAR, to soar up to rupees 60 per kg, which will hamper the profitability of the breads they will produce. Of the breads the company will produce. So the farmer and Britannia Limited enter into a financial arrangement, whereby the farmer agrees, or you can write down promises, to deliver 1000 kgs of wheat
at rupees 48 per kg after 3 months, and Britannia will procure 1000 kgs from the farmer. मतलब पेमेंट कर देगा, ठीक है. Now write down the benefits. It is a win-win situation. It is a win-win situation whereby farmer is protected against the downside, and Britannia is protected against the upside. Britannia is protected against the upside in the prices of wheat. I hope this much is clear. ठीक है. अभी आफ्टर 3 months तो प्राइस कुछ भी हो सकते हैं, किसको भी कुछ पता नहीं है. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू टू बीट uncertainty. So derivatives are essentially used to beat uncertainty, to manage risks. You are managing your risk. Farmer is managing his downside risk. Britannia is managing his upside risk. To remain profitable, farmer is trying to book the price so that he can repay the loan, so that he can run his house. Okay. So to do that, you should be entering into a derivative transaction so that you can sleep satisfactorily for the next 3 months, not worrying about what the prices will be in the future. Okay. So that is what is the reason for derivative. We will also write down the second example, which is of Sensex. Give heading S&P Sensex. S&P Sensex is a derivative. S&P Sensex is a derivative whose value depends on the value of the underlying 30 shares. On the value of the underlying 30 shares. If the value of these shares is increasing, then the value of the index will also increase. Then the value of index will also increase, and vice versa. ठीक है. इसके बारे में और डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. अभी वो 30 स्टॉक्स जो है वो परमानेंट नहीं होते. 30 शेयर्स जो है, these are not permanent. There is a reshuffling, rebalancing done. ठीक है, quite frequently. So that is what is a derivative. Now we are going to discuss the characteristics of derivatives, which are important for you to understand. ठीक है. So give heading characteristics of derivatives.
the first one, it is only a secondary market security. Why it is a secondary market security or a instrument? Because the value of this security or instrument derives from the value of the shares which are in primary market. ठीक है, so they are not at par with primary market. ठीक है, they are only secondary market securities and cannot help firms to raise funds. ठीक है, you can only raise funds by issuing debt or equity. ठीक है, you cannot raise funds using derivative, क्योंकि वैल्यू कहाँ से डिराइव होएगा डेरिवेटिव का? अगर ऑलरेडी इक्विटी इशू किया रहेगा तो ही फंड्स तो इक्विटी के सामने ही मिलेंगे, डेरिवेटिव के सामने नहीं मिलेंगे. ठीक है, अगर हम ओनरशिप देंगे तो ही कोई पैसा देगा ना. डेरिवेटिव डजंट इम्प्लाई ओनरशिप. ठीक है, सो यू कैन नॉट बी एन ओनर ऑफ द कंपनी बाय परचेजिंग अ डेरिवेटिव. ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट characteristic. Second, there is an India specific characteristic which states that in India derivatives are only cash settled. Derivatives are only cash settled. अभी ये क्या बात हुई? What does cash settlement mean? There are now two types of settlements. One is physical settlement and the second one is cash settlement. What we learned in our farmer example was an example of physical settlement wherein farmer will actually deliver rice, will actually deliver wheat, 1000 kgs wheat, and उसको सामने पैसा मिलेगा. But in India there is no such physical settlement, there is only cash settlement. Now you will say कि मतलब farmer और ब्रिटानिया ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते? कर सकते हैं. ठीक है, they can enter into such type of transaction, but that particular transaction will not fall under the purview of SEBI. ठीक है, it will not be regulated, and such type of transactions are called over the counter transactions, wherein a separate independent contract is being made and it is not regulated by SEBI Act. That particular अगर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं फार्मर और ब्रिटानिया एंड वो लोग लीगलाइज करते हैं उसको, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत में आ जाएंगे. दे विल नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ सेबी विच इज़ वेरी मच हाईली रेगुलेटेड. ठीक है, इंडिया की बात करें तो ओनली कैश सेटल, मतलब मैं अग्री करता हूँ कि मैं तुझे 1000 kgs राइस दूंगा एट 48 रुपीज़. नाउ व्हाट डज कैश सेटलमेंट इम्प्लाई इन दैट केस? सो मान के चलो फार्मर और बिटाना नहीं है, मैं और तू है. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि 1000, अच्छा हम दोनों अपोजिट यूज वाले हैं, जस्ट लाइक फार्मर एंड द ब्रिटानिया. मैं सोच रहा हूँ कि प्राइस नीचे जाएगा, तू सोच रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा. तो तू ये सोच रहा है कि अगर 48 में मिलेगा तो तू सस्ते में खरीद पा रहा है, क्योंकि तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? यू आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू बी 60 रुपीज आफ्टर 3 months, वेर एज आई एम ऑफ द बेरिश व्यू. बेरिश बुलिश क्या होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे. सो मैं सोच रहा हूँ कि प्राइस नीचे जाएगा, सो मैं तो 30 का भाव 40 का भाव पकड़ के चल रहा हूँ. तो मैं क्या करूँगा? आफ्टर 3 months I am ready to give you 1000 kgs of rice notionally at 48 rupees, which means I am ready to sell 1000 kgs of rice even if I don't have rice or wheat, whatever the case may be. So मैं देने को रेडी हूँ, बेचने को रेडी हूँ at 48. Now what will happen on third month? तूने भी परचेस करने को अग्री किया. What will happen on the third month is अभी जरूरी है, ध्यान से सुनना. If after 3 months the price of wheat is rupees 60 per kg, case number one, if the price of wheat is rupees 60 per kg, तूने कितने में खरीदने का प्रॉमिस किया था? 48 में. मैंने तो 48 में बेचने का प्रॉमिस किया था. क्या मेरे पास राइस है? नहीं है. ठीक है, एंड व्हाट आई विल हैव टू डू? आई विल हैव टू स्क्वायर ऑफ दिस ट्रांजैक्शन. स्क्वायर ऑफ मीन्स सेटल करना है ये ट्रांजैक्शन को. तो 48 में तो मैंने बेचा तुझे 1000 kgs ऑफ राइस, लेकिन मुझे बेचने के लिए खरीदना भी तो पड़ेगा नोशनली. जैसे मैं तुझे नोशनली बेच रहा हूँ, तो नोशनली मुझे 1000 kgs ऑफ राइस मार्केट से खरीदना पड़ेगा. कितने में? 60 में. तो मुझे इफेक्टिवली अगर 60 भरना पड़ रहा है एंड तेरे से 48 मिलेगा और 60 भरना पड़ रहा है, उससे अच्छा मैं क्या करूंगा? आई विल डायरेक्टली गिव यू 12 रुपीज.
अभी तू बोलेगा सर मुझे 12 रुपीज़ कैसे दोगे, क्या मतलब, समझा नहीं। 12 रुपीज़ मैं तुझे दूंगा, 48 तू मुझे देने वाला था, ठीक है ना। 48 प्लस 12 60 रुपीज़ से तुझे चाहिए तो 1000 केजीज ऑफ राइस खरीद ले मार्केट से, ठीक है। मतलब समझा कैश सेटलमेंट का, कि मैं तुझे नेट जो भी डिफरेंस है मेरे लॉस का उतना ही मैं तुझे पे करूंगा इन अमाउंट ऑफ कैश, मतलब मेरे ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। बेसिकली कैश सेटलमेंट मीन्स कॉम्पेंसेटिंग द काउंटर पार्टी विद द अमाउंट ऑफ लॉस दैट आई हैव इनकर्ड। मैंने 48 में बेचने की बात की थी, प्राइस 60 रुपीज हो गया, मैंने 12 रुपए का घाटा किया, तूने 12 रुपए का फायदा किया, एंड हेंस दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन is called a zero sum game. Zero sum game means the loss of a person is gain of the other person. मतलब मैंने 12,000 का लॉस किया, मतलब तेरा 12,000 का गेन हुआ, मैं तुझे 12,000 सीधा सीधा ट्रांसफर कर दूंगा, बाकी वो 1000 किलो हो गया 2000 किलो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जितना प्राइस डिफरेंस है उतना अमाउंट में तुझे रेमिट कर दूंगा, ठीक है। दिस वॉज केस नंबर 1 व्हेन द प्राइस वॉज 60 रुपीज। केस नंबर 2 मेरा एक्सपेक्टेशन सही होता है, मतलब प्राइस 30 रुपीज हो जाता है, ठीक है। मैंने तो 48 में तुझे बेचने की बात की थी, तू बोलेगा नहीं नहीं मुझे नहीं खरीदने का, अभी तो प्राइस मार्केट में 30 रुपये हो गए, तुझे खरीदना पड़ेगा, यू हैव एंटर्ड इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इफ यू बाय फ्रॉम मी एट 48 एंड सेल इन द मार्केट at rupees 30, you will incur a loss of 18 rupees. So instead of you doing such transactions, you are only going to pay me cash 18 rupees per kg multiplied by 1000 kgs. So 18,000 is your loss, which is my gain. So this is the meaning of cash settlement, and you understood farmer example में जो था वो physical settlement। उसके बारे में हम डिटेल में बाद में एक पैरा लिख सकते हैं, फिजिकल सेटलमेंट वर्सेस कैश सेटलमेंट, या फिर कैश सेटलमेंट का दूसरा नाम है नेट सेटलमेंट, जो नेट डिफरेंस लॉस या गेन जो भी होगा वो पे होता है, ठीक है। सो दैट इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेरिवेटिव्स। कमिंग टू थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेरिवेटिव्स, there is no limit on the number of units to be on the number of units to be transacted because there is no physical asset टू बी ट्रांजैक्टेड। अभी जैसे हमने कैश सेटलमेंट में बात किया कि क्या 1000 केजीज ऑफ वीट एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा था, क्या था मेरे पास 1000 केजीज ऑफ वीट नहीं था मेरे पास, बट वो वीट को हमने बेस बना के हमने ट्रांजैक्शन एंटर किया ना। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द फिजिकल एसेट exists or not, you can still enter into a derivative transaction, ठीक है। मतलब तेरे पास फिजिकल हो या ना हो, यू कैन स्टिल एंटर इनटू अ डेरिवेटिव, एंड नेट सेटल कर दिया तो वो पर्टिकुलर एसेट कभी बीच में आया ही नहीं लेती देती में, ठीक है। मतलब देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स। मैं 10,000 किलो वीट बेच सकता हूँ, मैं 50,000 किलो वीट बेच सकता हूँ, इवन इफ इंडिया का उतना प्रोडक्शन नहीं होगा फिर भी मैं उतना किलो वीट बेच सकता हूँ एट सो एंड सो प्राइस। सो दैट इज नथिंग बट अ बेसिस, ठीक है। वीट का प्राइस इज नथिंग बट एन अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस से आपको कुछ फर्क पड़ता नहीं है, एंड सिंस इट डजंट मेक एनी डिफरेंस देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स विच कैन बी ट्रांजैक्टेड, ठीक है। जैसे शेयर्स में होता है कि देयर आर ओनली डिफाइनाइट नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए उतने ही ट्रांजैक्ट हो सकते हैं, बट ऐसा इसमें नहीं है। शेयर्स 1000 इशू किए रहेंगे कंपनी ने तो 10,000 डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन वही 1000 शेयर के ऊपर ट्रेड हो रहे होंगे, ठीक है। सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेरिवेटिव। नेक्स्ट फीचर, डेरिवेटिव मार्केट is liquid and transaction can be effected easily. Since there has been a tremendous growth in derivatives market, मतलब जैसे जैसे अवेयरनेस और नॉलेज स्प्रेड हो रहा है वैसे और लोग डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हैं, सो द मार्केट हैज बिकम क्वाइट लिक्विड नाउ एंड ट्रांजैक्शंस कैन बी इफेक्टेड वेरी इजीली, ठीक है। नेक्स्ट फीचर, डेरिवेटिव्स विच आर OTC, मतलब ओवर द काउंटर। जैसा मैंने बोला
ब्रिटानिया और फार्मर का केस, डेरिवेटिव्स विच आर ओवर द काउंटर can be tailor made to the requirements of specific counterparties, can be tailor made to the requirement of the counterparties. ठीक है, मतलब हाँ अभी फार्मर और ब्रिटानिया दोनों नेगोशिएट कर सकते हैं. फार्मर बोलेगा 50 रुपया, 49 रुपीज़ ही लूँगा, ब्रिटानिया बोलेगा नहीं मैं 46 रुपीज़ ही दूंगा. सो दे कैन टेलर मेक, मतलब कभी डिलीवर करने का, कौन से प्राइस पे, कौन से डेट पे अभी डिलीवर करने का. सो एवरीथिंग कैन बी कस्टमाइज्ड इन केस ऑफ ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शन. अगर हम स्टॉक एक्सचेंज में आ गए तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, यही दिन पे इतने ही प्राइस पे होएगा, चाहिए तो बोलो. ठीक है, सो देयर यू कैन नॉट बार्गेन, नेगोशिएट और कस्टमाइज. ठीक है, ओनली इन केस ऑफ ओवर द काउंटर, मतलब ओवर द स्टॉक एक्सचेंज यू कैन मेक इट कस्टमाइज्ड. नेक्स्ट, डेरिवेटिव फीचर. डेरिवेटिव्स कैन बी used to derivatives can be used to hedge, speculate और to earn arbitrage profits. अभी ये क्या है ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, हेजिंग, स्पेकुलेशन एंड आर्बिट्राज. फिलहाल के लिए सिर्फ इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो नोटबुक में, ज़्यादा सोचो मत. ठीक है, लास्ट फीचर, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट must be distinguished from the underlying asset. Though the value of derivative is determined from the underlying. ठीक है, मतलब even if the value of derivative is determined from the underlying asset, still they must be distinguished, क्योंकि दोनों separate है. ठीक है, don't consider both as one and the same. ठीक है, so ऐसा भी नहीं हो सकता है कि रिलायंस का फॉर एग्जांपल स्टॉक प्राइस इज अप बाय 5%, सो ये एक्सपेक्ट नहीं करने का कि हाँ उसका डेरिवेटिव भी 5% से ही अप होगा. ठीक है, इट ऑल्सो शुड मीट द डिमांड सप्लाई क्राइटेरियाज एंड अदर सेंटिमेंट्स ऑफ डेरिवेटिव्स, क्योंकि उसका सेपरेट पर्पज है. ठीक है, जैसे ऊपर लिखा है हेजिंग, स्पेकुलेशन, आर्बिट्राज. सो द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव is based on the value of the underlying, but it cannot be one and the same. ठीक है, both interact and relate to each other, but both are separate instruments. ठीक है, both are separate, they need to be treated separately. ठीक है, now what are the 4 types of derivatives that we are going to learn? सिर्फ नामकरण करके छोड़ देते हैं. ठीक है, now see there are various bases on for classification, but उसमें से सिर्फ 2 ही बेसिस करेंगे क्योंकि बाकी के कुछ काम के नहीं है. सो फर्स्ट इज बेस्ड ऑन बेसिक नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट इज बेस्ड ऑन बेसिक नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. सो उसमें सिर्फ 4 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स. ठीक है, these are the 4 types of derivatives based on basic nature and characteristics and based on underlying asset. अभी हमने देखा ना
कौन से दो टाइप के अंडरलाइंग एसेट थे, टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल। बट हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, टेंजिबल इंटेंजिबल के बदले कमोडिटी डेरिवेटिव्स, मतलब गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, ठीक है। सो बेस्ड ऑन कमोडिटीज दे डिराइव देयर वैल्यू। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, मतलब स्टॉक्स, इंडेक्स, ये सब के बेसिस पे जो डिराइव होता है वैल्यू। फिर इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, सो डेरिवेटिव्स हुज वैल्यू derive from the value of interest rate, that is called interest rate derivatives. Next is credit derivatives, derives their value from the credit worthiness, credit scores, etc etc, वो हम बाद में करेंगे। and weather derivatives based on weather conditions, ठीक है। वेदर डेरिवेटिव्स हो गया। ओके, नाउ लास्ट स्मॉल एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रांजैक्शंस का एज वेल एज ओटीसी, ओवर द काउंटर क्या होता है, ठीक है। अगर हम ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन की बात करें तो एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन एंटर कर रहा है। Second example, again same, one party transacting with another party. So this is a one-to-one relationship, whereas in case of exchange traded, you don't know who